Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we have multiple exams in front of us. And this multiple exam has resulted into overcrowding of exam. And sometimes even clashing of dates. And this is a problem faced by many candidates. Yesterday, many people posted a comment, sir, on 5th I am having IBPS clerk, 6th I am having Nainital Bank exam, what I should do. And both these centers are at different cities, what I should do. You will recall that since beginning, since starting, I am saying focus on few exams. It is easier than said. Some of you may say, sir, we are unemployed, we have to try every opportunity, we have to apply for every exam. It is right. But if you are applying for every exam, you have to be psychologically prepared for clash of exams also. Why? Now, for most organizations, only 2 to 3 months are at disposal to conduct the examination. And during these 2-3 months, all the banking exams, all the SSC exams and other board exams will happen. Because they have to rush to complete these examinations before this financial year ends. Because this process is for their financial year. So when multiple boards have to rush for the examination, they will not seek the date only on Sundays and Saturdays. They will seek date on weekdays also. And the moment they seek the weekday, naturally there will be overcrowding of exams for candidates. And the moment there is a overcrowding of exam for candidates, now candidates has to pick some of the exams, and some of the exams they have to miss. Is it really bad? One extent, yes. Once you have applied, there is always urge to appear. But indirectly, this may help candidates also. This will reduce number of candidates in a particular exam. Because some candidates will be able to appear in A exam, others will be able to appear in B exam, and others will be able to appear in C exam. So by this process, the number of competitors in each examination may also fall. And if that happens, then competition can be slightly lower and it can ultimately benefit the candidate. So sometimes we may be over worried about the events that is happening. But since these events are not in our hands, we should leave the worry, and it is better we decide at our brain where we have to go, we have to take a decision and then prepare for that. How to prepare for these examinations, I have already suggested you through my various videos. Daily I am uploading videos how you should prepare. So follow those guidelines, it will help you and you will be coming victorious out of these examinations. Some people are expecting whether exams will be postponed or not. My own thought is it will be very difficult for the boards to postpone exams now. They will carry out the exams although there may be clash of exams. So we have to be psychologically prepared for that because this is an abnormal year. We cannot expect the splitting of exams on a larger period of time like normal year. This year already most exams are delayed. In some of the exams, re-examination is happening. So that has made the time schedule very tight. And we have to understand it and we have to adjust according to it. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब आप देखेंगे मल्टीपल एग्जाम हमारे सिर पे आ गए और काफ़ी समय से मैं ये बात करता आ रहा हूँ कि हमें साइकोलॉजिकली तैयार करना है कि बहुत ओवर क्राउडिंग हो जाएगी एग्जाम की. अब कल नैनीताल बैंक के एडमिट कार्ड आ गए. अब उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स का कहना है कि सर 5 तारीख को मेरा क्लर्क का एग्ज़ाम है IBPS का और 6 को मेरा एग्ज़ाम हो गया नैनीताल बैंक क्लर्क और ऑफिसर का, और वो भी दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन है. कैसे दूँ मैं?
बिल्कुल चिंता का विषय। पर अगर आप देखेंगे, मैं शुरू से आपको गाइड करता आ रहा हूँ कि कम से कम एग्जाम आप कंसंट्रेट करिए, वो एग्जाम कंसंट्रेट करिए जहां पर वैकेंसीज ज्यादा है, क्योंकि एग्जाम तो बहुत होंगे और जब हम सब अप्लाई करेंगे और इस साल सारे एग्जाम पुश बैक होके इसी पीरियड में आ गए हैं, तो नेचुरल है क्लैश ऑफ एग्जाम्स होगा, क्योंकि IBPS को भी एग्जाम खत्म करने हैं, SBI को भी खत्म करने हैं, SSC को भी खत्म करने हैं, टाइम वही 2-3 महीने का है। तो ये भी कई बार होगा कि सेम ही डे हमारे 2 एग्जाम आ जाए, अब हमें चूज करना पड़े कि किस में जाना है। अभी पिछले हफ्ते आपने देखा 22 तारीख को RBI का एग्जाम भी था और आपका SSC का एग्जाम भी था। कुछ लोग SSC में गए, कुछ लोग RBI के एग्जाम में गए। तो अब ये ऐसा होगा, क्योंकि ये उम्मीद करना कि बोर्ड एक के बाद एक एग्जाम पोस्टपोन करते चले जाएंगे, वो भी उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि डेटे उपलब्ध ही नहीं है। तो उनको एग्जाम भी करवाना है, वीकडेज में भी एग्जाम हो रहे हैं, अब सैटरडे संडे को भी एग्जाम हो रहे हैं। कई लोग वीकडे में एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। तो हमें जो ये चेंज्ड एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अपनी माइंडसेट को चेंज करना है। हमें ये मान के चलना है कि क्लैश ऑफ एग्जाम होगा, हमें इसमें से एक एग्जाम चूज करना है जहां हमारे लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा है पास करने की, और उसको कंसंट्रेट करना है। हमें इस चीज़ की उम्मीद करना कि कोई कैंपेन चले, कोई हमारे पोस्टपोन करा दे एग्ज़ाम, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ हमारी एनर्जीज वेस्ट होंगी। क्योंकि हमें ये देखना है कि ये एबनॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल ईयर नहीं है, ये हमें मान के चलना है। कितनी घटनाएं हमारे आसपास घट रही हैं जो पहले कभी नहीं घटी हैं, और सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन होते 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 इकट्ठे हो चुके हैं। कई एग्ज़ाम री एग्जामिनेशन भी हो रहे हैं, उससे भी प्रेशर पड़ गया इन बोर्ड्स के ऊपर, कोई भी डेट मेंटेन नहीं हो पा रही है। ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। तो अब मगर इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है और वो पॉजिटिव है। साइड इफ़ेक्ट क्या है कि जब मल्टीपल एग्ज़ाम एक दिन है तो नेचुरल है एक कैंडिडेट तो एक ही एग्ज़ाम में बैठेगा। तो यदि वो 2 एग्ज़ाम में बैठने वाला था, क्योंकि अब वो एक एग्ज़ाम में बैठने वाला है, तो उस एक्सटेंट तक कंपटीशन भी डाउन हो जाएगा, और कंपटीशन डाउन हो जाएगा तो कट ऑफ भी नीचे जा सकते हैं। पहले क्या हो रहा था कि कोई कैंडिडेट एक भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहा था और कोई कैंडिडेट 4-4, 5-5 जगह सिलेक्शन ले पा रहा था, क्योंकि वो सारे एग्ज़ाम में बैठ रहा है, उसका लेवल अचीव हो गया। तो हर चीज़ के दोनों पहलू हैं। अब इसके अंदर हमें पॉजिटिव पहलू लेके चलना है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम सोचे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, हम सोचे कि हम कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो कुछ हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मजबूर है। जो ऑर्गेनाइजेशंस ने पूरी दिमाग लगा के कोशिश करके ही उन डेटों पर फैसला किया, तो हमें उसके अंदर बेस्ट कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है ये हमें आना चाहिए। कैसे तैयारी करनी है, डेली आप वीडियोस डाल रहे हैं, उसको देखिए, उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करिए। इन चीज़ों पे एनर्जी मत वेस्ट करिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, एग्ज़ाम आगे हो जाए, पीछे हो जाए। जो भी आपके एग्ज़ाम की डेटें आ रही है उनमें से अभी से आप डिसाइड करिए कि कौन सा एग्ज़ाम देना है, कौन सा नहीं देना है, और उसके अकॉर्डिंगली अपने टाइम का इस्तेमाल करिए। वो बेटर अप्रोच है। मतलब इस साल को आप मान के चलिए ये एबनॉर्मल ईयर है, इसमें हमें अपने आप को एडजस्ट करना है। चीज़ें एडजस्ट नहीं करेंगी हमारे अकॉर्डिंग, हमें एडजस्ट करना है। हमें देखना है क्या बेटर है हमारे लिए, ये देखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।